हेलो फ्रेंड्स। तो जो टाइटल आज आप यहाँ देख रहे हैं, स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड हम उन स्टोरीज़ के थ्रू हम क्या-क्या करेंगे, पहले एक बार आपको बता दें कि स्टोरीज़ के थ्रू हम इंग्लिश का पढ़ना सीखेंगे कि कैसे किस ढंग से इंग्लिश का पढ़ा जा सकता है। सेकंडली हम क्या करेंगे, उसका मतलब मीनिंग्स देखेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसा इंग्लिश मतलब एक स्टोरीज़ का मतलब उठाया जा सकता है, मीनिंग्स उठाया जा सकता है। थर्ड हम देखेंगे कि कैसा सेंटेंसेस का यूज़ होता है एक स्टोरीज़ पे। एंड फोर्थ हम देखेंगे कैसा मतलब वर्ड मीनिंग्स जो है, वोकेबलरी जो है हमारा, वो कैसा इम्प्रूव किया जा सकता है। मतलब एक लैंग्वेज सीखने के लिए जितने सारा मतलब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सब हम मतलब साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे उस स्टोरी पे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप किए देखें एंड बने रहिए हमारे साथ। एंड आपका जो रीडिंग है वो भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें, मेरे साथ पढ़े एंड फिर उसको हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको समझाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ रहे। तो चले पहले एक बार हम स्टोरी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। जो नेम है यहाँ, स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ। वंस अपॉन ए टाइम, a daughter complained to her father that her life was miserable and that she didn't know how she was going to make it. She was tired of fighting and struggling all the time. It seemed just as one problem was solved, another one soon followed. Her father, a chef, took her to the kitchen. He filled 3 pots with water and placed each on a high fire. Once the 3 pots began to boil, he placed potatoes in one pot, eggs in the second pot, and ground coffee beans in the third pot. He then let them sit and boil without saying a word to his daughter. The daughter moaned and impatiently waited, wondering what he was doing. After 20 minutes, he turned off the burners. He took the potatoes out of the pot and placed them in a bowl. He pulled the eggs out and placed them in a bowl. He then ladled the coffee out and placed it in a cup. Turning to her, he asked, "Daughter, what do you see?" "Potatoes, eggs, and coffee," she hastily replied. "Look closer," he said, and touched the potatoes. She did and noted that they were soft. He then asked her to take an egg and break it. After pulling off the shell, she observed the hard boiled egg. Finally, he asked her to sip the coffee. Its rich aroma brought a smile to her face. "Father, what does this mean?" she asked. He then explained that the potatoes, the eggs, and coffee beans had each faced the same adversity, the boiling water. However, each one reacted differently. The potato went in strong, hard, and unrelenting, but in boiling water it became soft and weak. The egg was fragile, with a thin outer shell protecting its liquid interior until it was put in the boiling water. Then the inside of the egg became hard. However, the ground coffee beans were unique. After they were exposed to the boiling water, they changed the water and created something new. "Which one are you?" he asked his daughter. "When adversity knocks on your door, how do you respond? Are you a potato, an egg, or a coffee bean?" Moral: in life, things happen around us, things happen to us, but the only thing that truly matters is how you choose to react to it and what you make out of it. Life is all about learning, adopting, and converting all the struggles that we experience into something positive. तो ये हमारा मतलब जो रीडिंग है वो कंप्लीट हो गया। तो मैंने कोशिश की कि मतलब धीरे धीरे उसको पढ़ने की, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि कैसा पढ़ा जा सकता है एंड कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड्स का। तो आप भी मतलब पढ़ने की कोशिश करें, जो भी चीज़ें आपको जहाँ भी कोई भी स्टोरीज मिले, आप उसको रीडिंग करने की कोशिश करें, ताकि आपका रीडिंग जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। अगर एक बार रीडिंग इम्प्रूव हो जाए तो समझने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे मतलब बिल्डअप होता जाएगा। तो चले बने रहिए हमारे साथ, हम उसको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एंड एक बात आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें एंड उस नॉलेज को स्प्रेड करने में आप भी मतलब कंट्रीब्यूट करें। एंड अगर आपने अभी तक
पहले की स्टोरीज़ अगर अभी तक नहीं देखे, आई थिंक 17 और 18 स्टोरीज़ हो गया है, मतलब ईज़िली मतलब एक्सप्लेन किया गया है उनको। अगर आपने अभी तक नहीं देखे, प्लीज़ जाके उनको देख लें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज को मतलब एक्सपांड करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा टाइटल यहाँ दिया गया है, स्ट्रगल्स ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रगल्स जो होता है, जो हम जीवन में, लाइफ तो जीवन, आवर लाइफ मतलब हमारा जीवन, स्ट्रगल्स होता है जो संघर्ष होता है हमारे लाइफ में, जीवन में जितना सारा संघर्ष करते हैं हम, जितना सारा मतलब कठिनाइयों का मतलब आ, सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसका मतलब रिलेटेड स्टोरी होने जा रहा है। तो देखे उसको कैसा मतलब एक्सप्लेन किया गया है। वंस अपन ए टाइम, एक बार, फर्स्ट लाइन जो है हमारा, वंस अपन ए टाइम, एक बार क्या हुआ, ए डॉटर मतलब एक बेटी, कंप्लेन टू हर फादर, एक बेटी ने आपके बाप को शिकायत की। कंप्लेन मतलब शिकायत करना, कंप्लेन्ड, ईडी लगा है, मतलब पास्ट का स्टोरी है, पहले काम हो चुका है, इसलिए स्टोरी के जितने सारे सेंटेंसेस हमको मिलेगा वो पास्ट में मिलेगा, वो ध्यान में रखते हुए हम मतलब उसका मतलब उठाएंगे, माना उठाएंगे। तो कंप्लेन्ड हर फादर मतलब शिकायत की है, दैट, क्या शिकायत की है, हार्ड लाइफ वाज मिजरेबल, कि उसकी लाइफ, उसकी जीवन जो है वो बहुत दुखी है, एंड दैट शी डिडंट नो, एंड वो नहीं जानती, शी डिडंट नो मतलब वो नहीं जानती कि हाउ शी वाज गोइंग टू मेक इट मतलब वो लाइफ को कैसे बिताए, कैसे लाइफ को मतलब सहज सरल तरीके से बिताए, उसको मतलब नहीं पता अब, क्योंकि उसका लाइफ क्या है, बहुत मिजरेबल हो गया है। शी वॉज टायर्ड मतलब वो क्या हो गया, बहुत थक चुकी है। टायर्ड मतलब जो थक जाना होता है, तो शी वॉज टायर्ड, बहुत थक चुकी है, और फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग, फाइट करते करते, स्ट्रगल करते करते, जितने सारे मतलब संघर्ष होता है जीवन में, वो करते करते वो थक चुकी है ऑल द टाइम, मतलब हर वक्त, मतलब वो बहुत प्रॉब्लम का सामना कर रही है, इसलिए कंप्लेन कर रही है अपने बाप को। इट सीम्ड, ये मतलब ऐसा लगता है, जस्ट एज वन प्रॉब्लम वाज सॉल्व, ऐसा लगता है कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला तो अनदर वन सून फॉलोड, और एक प्रॉब्लम आ जाता है, जैसा हमारे लाइफ में होता है, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो और एक हमारे पीछा लग जाता है। तो ऐसे ही वो कंप्लेन कर रही है कि इट सीम्ड, कि ये ऐसा लगता है, जस्ट एज वन प्रॉब्लम वाज सॉल्व, एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, वाज सॉल्व मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, अनदर वन सून फॉलोड, सून मतलब बहुत जल्दी से फॉलो कर लेता है, आ जाता है। हर फादर, उसकी बाप ने, उसके बाप क्या थे, एक शेफ थे। शेफ क्या होता है, प्रोफेशनल कुक जो होते हैं, होटल में जो खाना पकाते हैं, खाना बनाते हैं, उसको प्रोफेशनल कुक, उसको शेफ कहा जाता है। टूक हर टू द किचन, तो टूक मतलब ले गया, टू हार मतलब उसको, टू द किचन कहाँ ले गया, किचन पे ले गया। ही फिल्ड उसने भरा, 3 पॉट्स, पॉट्स जो होता है, जो बर्तन होता है, पॉट्स जो पात्र होता है, बर्तन होता है, 3 पॉट्स विद वाटर, वाटर से भरा, एंड प्लेस्ड ईच ऑन ए हाई फायर, एंड 3 मतलब वो जो पॉट था, पात्र जो बर्तन था, पानी भरा हुआ, उसको मतलब फायर के, आग के ऊपर रखा, आग के मतलब चूल्हे पे रखा। वंस द 3 पॉट्स बिगेन टू बॉयल, अब वो 3 पॉट्स, जो तीनों बर्तन जो है पानी भरा हुआ, वो बिगेन टू बॉयल मतलब उबलना स्टार्ट कर दिया, जो पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया, बॉयल मतलब उबलना स्टार्ट हो गया, बिगन मतलब स्टार्ट हो जाना। ही प्लेस्ड तो उसने रखा, प्लेस मतलब रखा, पोटेटोज इन वन पॉट, एक पॉट पे, एक बर्तन पे क्या डाल दिया, पोटेटोज, पानी तो था, गर्म हो रहा था, उबल रहा था, तो पोटेटोज, एक बर्तन पे पोटेटोज रख दिया। एग्स इन द सेकंड पॉट, एग पे अंडा रख दिया। एंड क्या है, ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स इन द थर्ड पॉट, एंड थर्ड जो तीसरा पॉट था, तीसरा बर्तन में क्या रख दिया, ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी के जो बीज होते उसको मतलब फैल दिया, उसको रख दिया। ही देन लेफ्ट देम सीट एंड बॉयल, एंड उसके बाद उन तीनों का मतलब ऐसा रखा कि वो बॉयल हो रहा है, और बॉयल मतलब उबलता जा रहा है, आलू भी गर्म पानी पे उबलता जा रहा है, ऐसे अंडा भी उबलता जा रहा है, जो कॉफ़ी बीन्स है वो भी गर्म पानी पे है, सब मतलब टाइम दिया उसको, विदाउट सेइंग ए वर्ड, कुछ बिना कह के, मतलब कुछ ना कह के, एक वर्ड भी ना कह के, टू हिज डॉटर, उसकी बेटी को कुछ बिना कह के वो उबलता जा रहा है, मतलब उबलते दे रहा है। द डॉटर मोन्ड एंड इम्पेशेंटली वेटेड, तो वो जो बेटी जो थी वो मौंड कर रही थी। द डॉटर मौंड, डॉटर मौंड मतलब बिलाप कर रही थी, छोटे छोटे बच्चे जैसे रोते हैं थोड़ा थोड़ा साउंड करके, ऐसे मौन कर रही थी। एंड इम्पेशेंटली मतलब बेसब्री से वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी कि क्या हो रहा है। वंडरिंग एंड आश्चर्य हो रही थी कि व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो उसके बाप क्या कर रहे थे, व्हाट ही वाज डूइंग क्या कर रहे थे। आफ्टर 20 मिनट्स, कितने मिनट के बाद, मतलब 20 मिनट के बाद, ही टर्न्ड ऑफ द बर्नर्स मतलब उसका जो आग है उसको मतलब निभा दिया, मतलब आग बंद कर दिया। ही टुक द पोटैटोज आउट, एंड जो आलू था, पोटैटोज था, उसको निकाला,
ऑफ द पॉट एंड प्लेस देम इन ए बोल, और एक बॉल पे और एक बर्तन पे रखा, पोटैटोज को निकाल के और एक बर्तन पे रखा। ही पुल्ड द एग्स आउट एंड प्लेस्ड देम इन ए बोल, एंड जो अंडा था उनको भी निकाला एंड उनको भी अलग एक बर्तन पे रखा। ही देन लेडेड द कॉफ़ी आउट एंड प्लेस्ड इट इन ए कप, एंड एक कप के कॉफ़ी को कहाँ रखा, लेडेड मतलब जो चम्मच होता है लंबा, मतलब डंडी वाला, उसको लेडेड कहा जाता है। तो उसको निकाला, कॉफ़ी को निकाला, एक कप पे रखा, मतलब तीनों चीज़ों को मतलब अलग करके 3 बर्तन पे रखा। टर्निंग टू हार, अब वो मतलब घूम के कहाँ देख रहे हैं, मतलब अपनी बेटी की तरफ देखा। ही आस्क्ड एंड कहा, डॉटर कि बेटी, व्हाट डू यू सी, कि तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम देख रहे हो। पोटैटोज, एग्स एंड कॉफ़ी, ही हेस्टिली रिप्लाइड। ही हेस्टिली रिप्लाइड, हेस्टिली मतलब होता है जल्दी से, फौरन बता दी, तो उसने बता दी आलू है, एग है, अंडा है एंड कॉफ़ी है। शी हेस्टिली रिप्लाइड मतलब उसने जल्दी से, फौरन बता दी, रिप्लाई कर दी। लुक क्लोजर, लुक क्लोजर वो जो कमा के अंदर है, बाप ने कहा कि लुक क्लोजर, के पास आके देखो, पास आके देखो। ही सेड, उसने कहा, बाप ने कहा, एंड टच द पोटैटोज, एंड पोटैटो को क्या करो, जो आलू है उसको टच करो, उसको छू के देखो। शी डिड, उसने ऐसा किया। एंड नोटेड, एंड नोट किया मतलब नोटिस किया, दैट दे वर सॉफ्ट, के वो जो आलू है वो क्या हो गया, नरम, सॉफ्ट है, बहुत नरम है। ही देन आस्क्ड हर टू टेक एन एग, ही देन आस्क, उसके बाद आस्क हर मतलब उसको पूछी, मतलब उसकी बेटी को पूछा, टू टेक एन एग, एक अंडा को लो, एंड ब्रेक इट, एंड उसको मतलब टूट के देखो, उसको उसके अंदर को देखो टूट के। आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल, शेल जो होता है जो एग के बाहर जो खुल होता है, जो अंडे के बाहर के जो पतला खुल होता है उसको शेल कहा जाता है। तो उसको निकालने के बाद, पुलिंग ऑफ मतलब उसको निकालने के बाद, शी ऑब्जर्व, उसने देखा द हार्ड बॉइल्ड एग, कि उसके अंदर का जो नरम पानी होता है वो हार्ड है, हार्ड बॉइल्ड एग, वो मतलब मजबूत हो गया। फाइनली ही आस्क, उसके बाद उसने पूछा कि आलू तो हो गया, एग का भी काम हो गया, अब क्या रहा, मतलब कॉफ़ी रहा। ही आस्क हर टू सिप द कॉफ़ी, सिप जो होता है उसको मतलब कहा, उसको कहा कि एक क्या करो तुम, कॉफ़ी को सिप करो, सिप होता है थोड़ा थोड़ा करके पीना, जो घूट घूट करके पीना। तो उसको कहा कि थोड़ा कॉफ़ी पी के देखो। इट्स रिच अरोमा ब्रॉट हर ए स्माइल टू इट्स फेस, मतलब उसका जो रिच अरोमा है, रिच क्या है, रिच समृद्ध सुगंध है, अरोमा जो है सुगंध है, जो कॉफ़ी का मतलब इतना एक सुगंध है, इतना एक फ्लेवर निकला है। तो ब्रॉट मतलब लाया, स्माइल टू हर फेस, उसके मतलब फेस पे, उसके फेस पे एक स्माइल ला के दिया, इतना मज़ेदार कॉफ़ी है, कॉफ़ी का सुगंध जो है। तो फादर, अब वो कह रही कि फादर के बाबा, व्हाट डज दिस मीन, उसका मतलब क्या है, हमने तो सब कुछ देख लिया, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, क्या है उसका मतलब। शी आस्क, उसने पूछा। ही देन एक्सप्लेन्ड, उसके बाद बाप ने एक्सप्लेन किया दैट द पोटैटोज, देखो आलू जो है, द एग्स एंड कॉफ़ी बीन्स, एग जो है, अंडा जो है, एंड कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी के बीज जो है, हैड ईच फेस द सेम एडवर्सिटी। हैड ईच मतलब हर एक ने, हैड फेस्ड, हैड फेस मतलब क्या है, सामना किया, हर एक ने सामना किया, द सेम एडवर्सिटी, सेम मतलब सेम मुश्किल, सेम जो परेशानी है, सामना किया। आलू को भी गर्म पानी में डुबाया गया, अंडा को भी गर्म पानी में बॉयल किया गया, एंड कॉफ़ी बीज को भी गर्म पानी में डाला गया। तो तीनों ने सेम चीज़ें, सेम जो परेशानी है उसका सामना किया, एडवर्सिटी का सामना किया। द बॉइलिंग वाटर किया, द बॉइलिंग वाटर का सामना किया। हाउएवर, मतलब उसके बाद क्या हुआ, ईच वन रिएक्टेड, बट क्या हुआ, हर एक ने रिएक्ट किया, मतलब हर एक का प्रतिक्रिया किया था, डिफरेंट, अलग था, अलग था। द पोटैटो वेंट इन स्ट्रॉन्ग, पोटैटो जो आलू था वो पहले स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, वेंट इन स्ट्रॉन्ग। हार्ड एंड अनरिलेंटिंग, उसका सबका माना है मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग, हार्ड है, अनरिलेंटिंग बहुत मजबूत है, जो दुर्बल नहीं होता, वीक नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता, ऐसा था। बट इन बॉइलिंग वाटर, बट वाटर पे बॉयल करने के बाद, उबलने के बाद क्या हो गया, इट बिकेम सॉफ्ट, अब नरम हो गया, एंड वीक हो गया मतलब कमज़ोर हो गया, दुर्बल हो गया। द एग, तो पोटैटो का हम मतलब मिल गया। द एग वॉज फ्रेजाइल, फ्रेजाइल जो होता है बहुत नाजुक था, मतलब जिसको छूते ही मतलब टूट जाता है, ऐसा एग था। एग तो ऐसा होता है अंडा छूते ही मतलब या टूट जाता है, तो फ्रेजाइल था, बहुत फ्रेजाइल था। विद द थिन आउटर शेल, थिन मतलब पतला, आउटर शेल तो उसका बाहर का जो खोल है उसको आउटर शेल कहा जाता है, प्रोटेक्ट कर रहा था इट्स लिक्विड इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर का जो लिक्विड है, जो तरल है, जो पानी है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। मतलब एग का अंदर जो पानी है, लिक्विड है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, किसने, एक आउटर शेल ने, मतलब बाहर का एक
पतला खोलने, अंटिल इट वाज पुट इन द बॉइलिंग वाटर, मतलब बॉइलिंग वाटर पे उसको मतलब डुबाने से पहले तक उसका क्या था, अंदर एक लिक्विड था, तरल था, उसको प्रोटेक्ट कर रहा था एक पतला शेल ने। लेकिन क्या हो गया, देन द इनसाइड ऑफ द एग बिकेम हार्ड। अब क्या हो गया, इनसाइड का जो इंटीरियर का जो लिक्विड था वो क्या हो गया, बॉइलिंग के बाद हार्ड हो गया, मजबूत हो गया। तो जो पोटैटो का अंदर जो था वो नरम हो गया था, एग का अंदर बॉइलिंग के बाद क्या हो गया, हार्ड हो गया, मजबूत हो गया। तो दोनों ने मतलब अलग अलग रिएक्ट की है। हाउएवर द ग्राउंड कॉफी बीन्स जो है, कॉफी का बीज जो है वेयर यूनिक, बहुत अलग था, बहुत यूनिक था, अद्वितीय था। आफ्टर दे वेयर एक्सपोज टू द बॉइलिंग वाटर, उनको बॉइलिंग वाटर पे छोड़ने के बाद, खुलने के बाद क्या हो गया, द चेंज द वाटर। कॉफ़ी बीज ने तो पूरा वाटर को चेंज कर दिया। वाटर का जो मज़ा है, जो उसका टेस्ट है, जो उसका सेंट भी है, जो सब कुछ कलर को भी बदल दिया, क्रिएटेड समथिंग न्यू, उस वाटर को नया कुछ बना दिया। तो विच वन आर यू, आप बेटी को पूछ रहे कि तुम क्या हो। ही आस्क्ड हिज डॉटर, बेटी को क्या कह रहे कि तुम हो क्या। तो फादर ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल लाए उसकी बेटी को समझाने के लिए। आप बता रहे कि विच वन आर यू, उन तीनों में से तुम कौन हो। ही आस्क हिज डॉटर व्हेन एडवर्सिटी नॉक्स योर डोर, कि जब मुश्किलात, जब प्रॉब्लम हमारे डोर पे, हमारे दरवाजे पे नक करता है, मतलब क्या करता है, ठोकर मारता है, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, उसका प्रतिक्रिया तुम्हारा कैसे लेते हो, कैसे रिएक्ट करते हो। आर यू ए पोटैटो, क्या तुम एक आलू के जैसे हो जो एडवर्सिटी के सामना करने के बाद नरम हो जाता है, आलू बॉइलिंग के बाद नरम हो गया। एन एग, क्या तुम एक अंडा हो जो पहले नरम था, पहले फ्रिजाइल था, लेकिन बॉइलिंग के बाद उसका अंदर जो है मजबूत हो गया और स्ट्रांग हो गया। और एक कॉफ़ी बीन, या तुम कॉफ़ी के बीज हो जो क्या है, सेम एडवर्सिटी को फेस करने के बाद, सेम बॉइलिंग वाटर पे डालने के बाद पूरा पानी को ही चेंज कर दिया, उसका मज़ा मतलब अलग कर दिया, उसका जो कलर है उसको उसका जो और फ्लेवर भी जो है उसको बदल दिया। तुम कौन हो उन तीनों में से। तो अब उसका मॉरल जो है, मॉरल यहाँ बताया गया है कि इन लाइफ, हमारे जीवन में, इन लाइफ जीवन में थिंग्स हैपेंस, बहुत सारी चीज़ें घटता है अराउंड अस, हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें होता है। थिंग्स हैपन टू अस, यहाँ तक हमारे साथ भी बहुत घटना घटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। बट द ओनली थिंग दैट ट्रूली मैटर्स बट द ओनली थिंग्स, बट वही चीज़ें जो सही सही मैटर करता है, जो सही सही मायने रखता है, इज़ हाउ यू चूज टू रिएक्ट टू इट एंड व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। हाउ यू चूज, कि तुम कैसे चूज करते हो टू रिएक्ट, कि उसका जैसा भी, जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उसका हम सामना कैसे करें, वही मैटर करता है। एंड व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, एंड व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट, हम उससे क्या रिजल्ट निकालते हैं, हम उससे कैसे बनाते हैं, उस एडवर्सिटी का रिजल्ट कैसे निकालते हैं, वही मैटर करता है। तो उसके बाद कह रहा है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट, लाइफ क्या है, लाइफ तो वही है, लीनिंग, अडॉप्टिंग एंड कन्वर्टिंग ऑल द स्ट्रगल्स। लाइफ क्या है, लीनिंग जो होता है थोड़ा तिरछा मिर्चा होके जाना, लाइफ ऐसा होता है, अप डाउन हर वक्त होता है। एडॉप्टिंग होता है कि नए नए चीज़ों को अपनाना, एंड कन्वर्टिंग के बदलना, ऑल द स्ट्रगल, जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, जितने सारे मतलब जितने सारे मुसीबतें होता है, स्ट्रगल्स मतलब होता है हमारा लाइफ में, उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं हम उसको, वही मैटर करता है लाइफ में। दैट वी एक्सपीरियंस इनटू समथिंग पॉजिटिव, जो हम अनुभव करते हैं समथिंग पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है। तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, घटना घटते रहेगा, चीज़ें आते रहेगा, मुश्किलात आते रहेंगे, तो हम उस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, हम आलू के जैसे रिएक्ट करते हैं या एग के जैसे या कॉफ़ी के जैसे, वही हमारे मतलब ये टोटली डिपेंड करता है हम मतलब हमारे ऊपर। हम जैसे रिएक्ट करेंगे ऐसे ही बनेंगे। अगर आलू के जैसे रिएक्ट करेंगे तो नरम बन जाएंगे एडवर्सिटी से फेस करने के बाद। अगर एग के जैसे करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब और भी हम मतलब मजबूत होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। अगर मतलब कॉफ़ी के जैसे मतलब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जितने सारे प्रॉब्लम्स है उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे, हम उसको हमारे जैसा ही बना देंगे, उस पानी को पूरा बदल दी कॉफ़ी ने। इसीलिए हमको ऐसा सोच समझ के स्टेप लेना है, हमको सिर्फ वही करना है जो हमारे लिए पॉजिटिव होता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं पॉजिटिवली। तो यही बहुत अच्छा सीख दिया गया है, मॉरल स्टोरीज़ है, मॉरल वैल्यूज़ दिया गया है हमको। हम उस मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करके चलना है। एंड हमारे जो मेन एम एंड फोकस है इंग्लिश को सीखना, इंग्लिश को समझना। तो हम समझाने की, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की, वर्ड मीनिंग बताने की कोशिश किया, तो आप उसको देखिए, आप मतलब उसको डीपली उसको देखें, उसको सीखने की कोशिश करें, ताकि
मतलब उस लैंग्वेज पे आप क्या हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, स्मार्ट हो जाए, मास्टर हो जाए, कुछ भी हो, मतलब आप उस पे मेहनत करें एंड जितने सारे स्टोरीज़ आपको मिले वही पढ़ते रहे एंड धीरे-धीरे आपका इम्प्रूव होता जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मतलब उसको मत भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि उससे हमको इंस्पायर मतलब हम इंस्पायर होते हैं वीडियो बनाने की और अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। एंड अगर आप सब्सक्राइब भी करें तो क्या होगा, हम जब भी नए वीडियो डालेंगे तो आप मिस नहीं करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे। चलें